हाँ भाई, प्यारे बच्चों, my dear friends and my sweet students. I think everybody is okay and enjoying their life. Last time I had given you one derivation, the motion of a charged particle on a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field. And in that I told you, number one, the particle executes a circular path due to magnetic Lorentz force. Speed and kinetic energy remains constant. Velocity magnitude is constant, but its direction keeps on changing. So momentum also changes. Force is independent of radius but depends upon velocity directly proportionally. And the time period is also independent of velocity but depends upon mass and charge of particle. उसमें न्यूमेरिकल नहीं किया था हमने, तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक नई चीज़ करवाता हूँ. बिकॉज यू नो दैट वी आर रिसर्चिंग, हम रिसर्च करते जा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, सो व्हाट हैपन्स. तो किसी के दिमाग में आया कि अरे यार, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो क्या होगा. तो हमने कहा हाँ, जरूर करते. इट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in an यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराऊंगा. Actually, when we are doing number of things, then finally we will get a result which is going for the practical implication. यानी अप्लाइड फिजिक्स के लिए आगे चला जाता है. ओके, सो दिस इज a charge particle q, and here we have a screen. This is a screen, and in the absence of any electric field, any magnetic field, particle strikes here at point 2. यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, यानी पिक्चर ट्यूब में यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है. एंड नाउ if we apply a uniform electric field perpendicular to the plane of the board या पेपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, this is perpendicular. So now charge particle deflects. क्या होता है, चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट होने लगता है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है और जैसे यहाँ निकलता है सीधा चला जाता है. नाउ एट ओ डैश, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट y, राइट. दिस इज रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो होता क्या है, जरा हम पूरा देखें इसमें. कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल q when a uniform electric field E is applied, then याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, if there is an electric field and a charged particle is placed in an electric field, then what happens? अरे charged particle will experience as a force. याद है ना, और फार्मूला याद होगा, नहीं याद? अरे ये वाला यार, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. फोर्स ये होगा क्यू नॉट ई. देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज, यहाँ से है, F equal to, it is a vector, equal to Q naught E. F equal to Q naught E. Now from Newton's second law of motion, force is mass into acceleration. So acceleration equal to Q naught E upon M. या Q कह देता हूँ, चार्ज पार्टिकल को Q लिया है ना, तो यहाँ में Q ले लूँगा. ओके, QE upon M, QE upon M.
correct? It means charge particle accelerates in an electric field. Just like कि हम जा रहे हैं, हम चार्ज पार्टिकल है और हमारे पीछे किसी ने डॉग छोड़ दिए, कुत्ते, तो हम क्या होगा, हम भागेंगे, एक्सेलरेट होंगे, and our acceleration is qe upon m where e is electric field of dog. और अगर डॉग उधर से आ रहा है तो we retard, it means we get acceleration but in opposite direction, retardation minus qe upon m. So this is the acceleration experienced by the charged particle, and this force is actually Fe, which is electric Lorentz force. क्या है बच्चों ये? Fe is electric Lorentz force. आपको क्लियर हो गया? If a charged particle is placed in an electric field, then it experiences a force which is given by QE. Right? Now, I am taking one or two cases only, special cases, जो आपने हमेशा अपन लेते ही हैं, अपनी आदत ही है कि इफ इलेक्ट्रिक, सॉरी ये डायग्राम अच्छा बना था, फालतू मिटा दिया, ये था, है ना? If electric field is applied in the direction of the charged particle, motion of the charged particle is also moving in this direction. So special cases ले रहे हैं. If electric field is applied along the direction of motion of charged particle, then charge particle accelerates with acceleration QE upon m. करेक्ट बच्चों? तो आपको पहले ही समझ में आ गया. You all are intelligent. If electric field is applied along the direction of motion of charged particle, then charged particle accelerates. उसके पीछे डॉग छोड़ दिए तो ये तेजी से भागेगा. And acceleration is QE by m. More electric field, more acceleration. More electric field, more acceleration. Okay. Now suppose you are applying electric field in the opposite direction. तो क्या होगा? अरे चार्ज पार्टिकल डर जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा. यानी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ motion of charged particle, then charged particle deaccelerate with deceleration minus QE by m. देखिए क्या चालाकी की मैंने, वही लिखा था और वैसे का वैसे ही काम चला दिया. If electric field is applied in the opposite direction of motion of charged particle, then charged particle deaccelerates with deceleration, with deceleration A equal to minus QE by m. Name is same, minus sign is there. Minus means it is deaccelerate. It means speed decreases. Okay. But if you apply electric field perpendicular to the direction, if electric field is applied perpendicular to the direction of motion, ये ऐसे लगाएंगे परपेंडिकुलर. आपको याद है चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है, यानी पैराबोलिक पाथ हो जाता है. देन चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, नहीं स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी है, एग्जीक्यूट्स पैराबोलिक पाथ, या प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं आप इसको. ओके. तो ये तीन बातें हुई हमारे पास, लेकिन हम लोग कभी रुकते नहीं हैं, हम कभी भी नहीं रुकते
आगे बढ़े रहते हैं, भारत के वासी हैं हम। और कैसे आगे बढ़ते हैं? हमने कहा यार दोनों एक साथ लगा दो, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो क्या होगा, यानी टोटल लॉरेंज फोर्स क्या होगा। सो वी आर नाउ फाइंडिंग टोटल लॉरेंज फोर्स, टोटल लॉरेंज फोर्स, राइट। यानी इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन, if charge particle is moving in both uniform magnetic field and electric field, then the total Lorentz force, total Lorentz force is, मतलब टोटल लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, दोनों होंगे, एफ एम भी होगा और एफ ई भी होगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। सो आई एम नाउ राइटिंग द वैल्यू, एफ एम क्या था, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, and this is q e vector. So q is common and we have v vector cross b vector plus e vector. This is my total Lorentz force experienced by charged particle. And you know very well, always we are doing something with the help of some special cases. It means maybe v, b, e, these all three are vectors, maybe they are collinear और मे बी परपेंडिकुलर। तो हम देखते हैं क्या होने वाला। स्पेशल केसेस ले रहा हूँ, इसको याद रखें आप। इफ स्पेशल केसेस बच्चों हैं, नंबर 1, इफ वी बी एंड ई आर कोलिनियर। देखो भाई, कोलिनियर प्लीज हमेशा याद रखो, कोलिनियर मीन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, बोथ आर कोलिनियर। सो इट मीन्स थीटा हम 0 भी ले सकते हैं और 180 भी, मैं 0 ले रहा हूँ वैसे, या थीटा 180 एक ही बात, बिकॉज इन क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव साइन थीटा। तो एफ एम क्या हो जाएगा, देखो एफ एम होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, दैट इज 0। इट मीन्स देयर इज नो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एग्जिस्ट, ये वाला फोर्स तो कट गया, तो बचा कौन, ओनली इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। So due to electric Lorentz force, you know, if electric field is 0 degree, मतलब उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट 180 डिग्री डीएक्सेलरेट, यानी पार्टिकल सर्कल में नहीं मूव करने वाला, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सो मैं पूरा लिखूंगा भी। सो ओनली इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंज force acts on charge particle, and if theta is 0, 0 means parallel है, then particle accelerates with acceleration qe by m. Am I correct? और पैरेलल आप लोग समझते होंगे, पैरेलल की स्पेलिंग में गलत तो नहीं लिखता हूँ, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं कई बार स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, कहीं दिख नहीं रही मुझे तो स्पेलिंग अभी इसमें। एंड if theta is equal to 180, 180 means anti-parallel, then charge particle
deaccelerates, क्या डीएक्सेलरेशन में होगा? माइनस क्यू ई अपॉन एम। देखा बच्चों, ये देखो, इट मीन्स व्हेन कोलिनियर ओनली इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स एक्ट्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज जीरो। पार्टिकल या तो एक्सेलरेट होगा या डीएक्सेलरेट, बट इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो क्या होगा? एंड दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ टाइम्स दिस केस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए स्टार लगा देता हूँ। ए v vector perpendicular e vector, it means theta is 90, and when theta is 90, magnetic Lorentz force is qvb sin 90 equal to qvb, that is maximum magnetic Lorentz force। मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स लगेगा मैग्नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, लेकिन उसकी वजह से अब क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। सो F is equal to Fm plus Fe, or Q into V cross B plus Q into E. Okay. Now we adjust the magnetic Lorentz force and electric Lorentz force in such a way that total effect of the force is zero. हम चाहते हैं कि टोटल फोर्स जीरो हो जाए, तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाए। समझ रहे हैं आप? If F equal to 0, then Fm equal to, then Fm plus Fe is equal to 0, or Fe is equal to minus Fm. Am I correct? दोनों एक की डायरेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए टोटल होके, तो ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। सो Fe इज QE इक्वल टू माइनस Q इंटू वी क्रॉस पी, और Q से Q तो कैंसिल हो ही गया बच्चों। सो E मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, E इक्वल टू वी बी साइन 90। सो E इज इक्वल टू वी बी, और V इज इक्वल टू E अपॉन बी, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। अरे ये एक्चुअली अभी आपको पता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। ये देखो किया क्या है मैंने, एफ इक्वल टू माइनस एफ एम, एफ की वैल्यू पुट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये क्यू इंटू क्यू कैंसल, ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड वी बी साइन 90, so v is equal to E by E. With this we can find the speed of electromagnetic wave. हाँ, अभी आगे आएगा। And this concept is known as velocity selector or velocity filter. It means if total Lorentz force is zero, then we will get a beam of charged particle moving with same velocity. एक बीम आती है, अलग अलग बीम आएगी, प्रोटॉन की बीम अलग, इलेक्ट्रॉन की बीम अलग, अल्फा पार्टिकल की बीम अलग। तो देख कंसेप्ट कितना बढ़िया है। तो आपको, मुझे लगता है कि कुछ क्लियर होगा कि what is total magnetic Lorentz force and what is the effect of perpendicular and parallel, and this concept is used in cyclotron, जिसका वीडियो मैं खुशी खुशी आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले ही बना चुका हूँ लास्ट ईयर, तो आप देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कुछ लगे कि यार ये कैसे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए अभी टाइम है 19 मिनट ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। A beam of ions, a beam of ions with velocity
2 into 10 to the power 5 meter per second enters normally into a uniform, मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म बी ऑफ 0.04 टेस्ला if specific charge of ion is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg. Find the radius of path described. ओके बच्चों, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ. जस्ट लुक हियर, whatever is given we have to write. Velocity of ion is given v 2 into 10 to the power 5 meter per second enters normally. Normally means theta is 90 degree. Magnetic field is given b 0.04 Tesla. Specific charge is given. Suppose you are not knowing what is specific charge, so just look at the unit, coulomb per kg. Coulomb means charge और ये मास है, मतलब ये q by m है. क्या है ये? q by m, and q by m is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg, and find the radius of the circular path. And you know the radius of circular path formula. We know R equal to mv upon qb. तो बच्चे बोलेंगे अरे अरे क्या कर रहे हो सर, v2 था या तो अरे भाई v2 तब था जब वो यूनिफॉर्म में था, और अब वो v वेलोसिटी से ही जा रहा है साइक्लोट्रॉन में. इन साइक्लोट्रॉन ओनली वन वेलोसिटी इज देयर सर्कुलरली. ओके, सो वी हैव टू फाइंड r. तो q बाय m है तो m को नीचे ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा v अपॉन q बाय m इंटू बी. थोड़ा आगे आ गया मैं, v m नीचे आ गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v 2 into 10 to the power 5 upon q by m is 5 into 10 to the power 7 and b is 0.04. and you all are mathematics genius. वैसे तो मैं भी हूँ, और मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ. आई डोंट कॉस्ट योर टाइम शुड बी वेस्टेड. सो 0.1 मीटर आ रहा है. इट मीन्स यू कैन फाइंड r इज 0.1 मीटर. अच्छा लगा आपको? लगा ना? एक और न्यूमेरिकल करा देता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है वो, आपको अच्छा लगेगा. एक और, ज़्यादा नहीं, घबराओ मत, एक लास्ट है, ठीक है? या टोटल ऑरेंज फोर्स का कोई क्वेश्चन हो तो वो करवा देता हूँ. ऐसे टोटल का भी है, तो चलो ये अच्छा लगता है मुझे. एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 0.90 into 10 to the power minus 30 kg under the action of B लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को. under the action of magnetic field moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second if a proton of mass 1.8 into 10 to the power minus 27 kg were to move in a circle of same radius means electron वाली radius in same magnetic field, find its speed. शानदार क्वेश्चन है बस.
अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कैसे करते हैं। आप देखिए, हाँ ये मैंने कहा ख़त्म किया, क्या क्या दिया है पहले तो वो लिख लो आप, तो फिर आपको करने में इजी रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.90 इंटू 10⁻⁻30। एक्चुअली 10⁻31 होता है, पर वो 9 पॉइंट होता है, तो यह पॉइंट कर दिया इसमें। अंडर द एक्शन ऑफ बी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दी है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है तो इसको हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, आपको पता ही है मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 मीटर, करेक्ट। एंड स्पीड इज ऑल्सो गिवन, वी ई 3 into 10 to the power 6 meter per second. Now a proton is also moving with of mass of proton is given 1.8 into 10 to the power minus 27 kg इन ए सर्कल। सेम रेडियस है भाई, इसकी रेडियस भी यही है, यानी आर पी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर। मतलब कट जाएगा, मैं कन्वर्ट नहीं करता तो भी कोई फ़ायदा, कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई काम नहीं आएगी ये देखना। फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड निकालनी, वी पी। ओके, सो वी नो actually whatever is given in the question, from there we are getting the formula। रेडियस दी है तो रेडियस का ही लगना है। सो आर इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, करेक्ट। सो v is equal to BQR upon m। ओके, तो यहाँ से पहले देख लो व्हाट विच क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, B कांस्टेंट हो गया, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। चार्ज, चार्ज भी नहीं है, मतलब सेम है। रेडियस इज ऑल्सो सेम, दीज ऑल थ्री आर कांस्टेंट, इट मीन्स V डिपेंड्स ओनली ऑन m। तो हमारा बहुत अच्छा काम हो गया, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m। और आपको Vp निकालना है, तो Vp अपॉन Ve इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, Me अपॉन Mt होगा ना। अरे इन्वर्सली है ना, अगर आपको ये नहीं आता तो एक और तरीका बताता हूँ। Vp इक्वल टू K अपॉन Mp एंड Ve इक्वल टू K अपॉन Me। अब इनको डिवाइड कर दो, तो K से K कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, Me अपॉन Mt। देखो वही आया, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड Vp, सो Vp इक्वल टू Ve इंटू Me अपॉन Mt। अब ये वैल्यू है क्या आपके पास, देखो आर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फालतू मेहनत की मैंने। सो वी कितना, वी 3 इंटू 10 टू द पावर 6, व्हाट इज Me, Me है क्या 0.90 इंटू 10 टू द पावर 30 अपॉन Mt 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 0.9, और आंसर आएगा 1.5 एंड 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। कैसा लगा, अच्छा लगा, इंजॉय। तो खुश रहो बच्चों, बढ़िया खाओ पियो मजे करो, माता पिता के साथ अच्छी तरह रहो, दोस्तों के साथ भी, हमेशा मैं माता पिता ही नहीं बोलूँगा, दोस्तों के साथ भी खुश रहो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।